So thank you. What do you, Ajay? Ajay, तुम रोकेगा कब? जिग्नेश तुम कर क्या No, रहे? no, I am traveling to today doing the Rajesh Desai. Yes, Rajesh Desai. Yeah. Okay, now time is over. Your time is over. Okay. So today, who's going to lead? How we celebrate happy morning? New way, new style, so people can inspire. Any suggestion from anybody? It's an opportunity. I want to say everybody raise hand. Okay, we are going to lead. Yeah. Good morning. Good morning. Now say 1 minute to left. Good morning. Who's going to lead? Morning. Come on. आप नहीं करोगे तो फिर मैं पकड़ूंगा. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. राजेश भाई को फॉलो कर रहे हैं ना. ये गुड मॉर्निंग. Good morning. गुड मॉर्निंग. Good morning. We are going to give the opportunity Good morning. Today is the empowerment. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. राजेश भाई. Good morning. Good morning. हाथ बाहर नहीं आ जाए. Good morning. Can we have the PPT, please? Rajesh, you are on mute. Rajesh want to add something, I think. Rajesh, आप mute पे हो. सर स्क्रीन अभी शेयर करनी हाँ है. तो मैं अभी 7 बज गए, हमारा अपॉर्चुनिटी चला गया. गुड मॉर्निंग का. Okay, carry on. Okay, next slide. Next. Okay, next. Yes, C6, Soumya Sabaya. Can you unmute? Roll number C6, Soumya Sabaya. Yes. Mangal. Yes. Can you clear the intention, please? To empower every individual by teaching him her English. Okay. So, okay, what is the meaning of it? We want to know. सभी को टीचिंग करके एम्पावर करना है. ओके, ठीक है. कल आपसे वापस पूछेंगे इसके बारे में. आज आपका माइक इको पर है, तो फिर कल करेंगे इसको. So actually our intention is to empower every individual by teaching him or her English. You all know it very well. But अभी आपको इसको explain करना कैसे करना है वो सीखना है. So practice it. Okay. Next. Yes, C39, Hit Rajani.
Heath, are you there? C73, Bhavyata Connect. C73. C7, Risha Wagadia. Yes, Krisha. Why do you want to learn English? सर इंग्लिश में नहीं आता। ओके, हिंदी में बता दीजिए। क्यों सीखना है इंग्लिश? बाकी सब जो है वो चैट में लिखेंगे। Why do you want to learn English? Come on, लिखिए चैट में ऐसे मोबाइल लेकर ऐसे लिखिए। Come on. C64 Nakum Manav Nakum. Yes, Manav, tell me. Yes, sir. So why do you want to learn English? I want to learn English for my family and friends. So you want to learn English for your family and for your friends? Yes, sir. How will they affect if you learn English? What difference will it make in their lives? The different. Yes, but what type of difference? Its learning is very easy. Yes, English learning is very easy. I can understand. But why do you want to learn English? What is your purpose? I am make a doctor. Okay. So you want to be a doctor. That's why you want to learn English. Yes. Okay. What are you doing right now? Are you studying or what? No, I am sitting now. Okay. I'm not talking about your right now. Means, what do you do? Means, are you studying? What is your daily activity? Are you in school? Yes, sir. Okay. In which standard? 10th. 10th. Okay. Great. Okay. बहुत सारे लोगों ने चैट में लिखा है, वेरी गुड और थैंक यू। अभी आपको लगता होगा कि अभी पानी पूरी खाने का मन है तो पानी पूरी खाने का। अभी ये रोज सुबह पूछता है कि भाई पानी पूरी क्यों खाने का, प्यारी पूरी क्यों खाने का। अभी खिला दो ना, सीधा मन हुआ है तो खाना है। रोज सुबह पूछता है, फिर भैया पानी पूरी दो, तो पानी पूरी वाला पूछता है क्यों खाना है तुमको, पानी पूरी दो भाई, क्यों खाना है तुमको, तो 5 रुपया ले और खिला दे, अभी ज्यादा झंझट मत कर। अभी सबको फील हो रहा होगा। सो थैंक यू, बहुत जरूरी है, काफी समय से नहीं पूछा था तो आपसे बात करने का मन था। जिन जिन लोगों ने चैट में लिखा है थैंक यू वेरी मच, और इसको बार बार याद करते रहे तो आपको मजा आएगा। ओके, सो यू हैव, आवर जर्नी हैज कम सो फार। अभी हमारा जो सफर है वो बहुत दूर तक आ गया है और नाउ इट्स टाइम दैट यू टॉक इन इंग्लिश, एटलीस्ट ट्राई। आप इंग्लिश में बात करिए, कम से कम ट्राई तो करिए, राइट? नेक्स्ट प्लीज। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो जयेश सर ने आपको कल बहुत अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट सिखाया था। आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही जरूरी, राइट? बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक ही अगर
आप खुद को अपने आप से आपको अंदर से आंसर मिल जाएगा व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट। ओके, सबसे पहले व्हेन डू वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन बताएगा? हु विल शेयर? गुड, ध्रुविन, उर्वशी, गोपी, गुड। ओके, यस, अर्नव चोपड़ा, G6, व्हेन डू वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कहाँ यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? पास्ट की जो हो गई है परफेक्ट, जो क्रिया हो गई है उसको प्रेजेंट में बताना हो तब। जैसे ध्यान से देखिएगा, देयर आर 134 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन। अब सब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इजी टेंस है, मजेदार है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यस सतीश, D109। पास्ट में जो कोई क्रिया कंप्लीट हो गई है उसको पास्ट में हमको बताना होता है। पास्ट की क्रिया में प्रेजेंट में बताएंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ओके, लेकिन पास्ट की क्रिया प्रेजेंट में बताएंगे, क्यों बताएंगे? फिर हम पास्ट में ही बताएंगे ना। ये बात भी सही है सर। ओके, गुड, थैंक यू। कंफ्यूजिंग सर। नो नो ना, अभी बताता हूँ, कोई बात नहीं। यस गोपी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कोई भी क्रिया पास्ट में, पास्ट की जो कोई भी बात है वो प्रेजेंट में बताना है, तब भी परफेक्ट प्रेजेंट का यूज होता है। सपोज कि मैं खाना खा लिया है तो खाने की क्रिया तो कंप्लीट हो गई, पर लेकिन हम किसी के घर पे जाते हैं तभी वो बोलते हैं कि चलो खाने, तो हम क्या बोलते हैं कि हमने खाना खा लिया है। तो क्रिया पास्ट में कंप्लीट हो गई, पर लेकिन हम बताते प्रेजेंट में, तब भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है। तो सारी क्रिया हम प्रेजेंट में ही बताएंगे। अगर मैंने आपको बोल दिया कि मैंने खाना खा लिया, सिंपल पास्ट में मैंने बोला कि आई एट, या फिर आई प्लेड, मैंने खेल लिया, राइट? तो वो बता तो मैं प्रेजेंट में ही रहा हूँ ना, ये भी मैं प्रेजेंट में ही बता रहा हूँ। नहीं, दूसरे लोग को नहीं, मैं आप ही को बता रहा हूँ। जैसे मैंने अब आपको बता रहा हूँ कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस है ना, तो मैं बता तो प्रेजेंट में ही रहा हूँ ना आपको, फिर भी यूज तो मैंने पास्ट कंटिन्यूअस किया। अब मान लो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कल क्रिकेट खेला, तो आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, सिंपल पास्ट बताया, तो अभी आपको अभी बता रहा हूँ। पर लेकिन वो क्रिया तो पास्ट में कंप्लीट की है। हाँ, तो पास्ट में, तो मैं वही बोल रहा हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है फिर? जो क्रिया पास्ट में कंप्लीट हो गई वो अभी बताना है कि मैं जमी ली तुझे, वैसे कोई, इसीलिए। हाँ, लेकिन मैं अगर ये बोलूंगा कि मैंने परसों या फिर लास्ट मंथ या फिर कल क्रिकेट खेला था, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। देखिए, ये सवाल मैं गोपी से नहीं कर रहा हूँ, राइट? गोपी को मैं फोन पर भी समझा सकता हूँ, बाकी सब सुनिएगा। ये मैं आप सब गोपी के साथ इसीलिए बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप सबको भी इसको देखना है कि हम डिफरेंस सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे, सिंपल पास्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में क्या अंतर है। ओके, और कौन बताएगा? यस पायल। સર, જે ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ છે પણ એની અસર હજી ચાલુ હોય તેને પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ કહેવાય। ઉદાહરણ તરીકે મેં રસોઈ બનાવી છે। ओके ओके, एक और ले लेते हैं। यस रश्मिता, E13। यस रश्मिता। तो पास्ट में क्रिया हो चुकी है, उसकी क्या, जो पास्ट में हो चुके है उसका अभी असर उसकी चालू है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं मंदिर जाके आई हूँ, मंदिर में जाके आ गई। ओके, रिवीजन करवा देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, राइट? कि पास्ट में एक्टिविटी होती है तो हम उसको सिंपल पास्ट से भी दिखा सकते हैं,
और प्रेजेंट परफेक्ट से भी दिखा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया, सेब खाया, कल खाया, परसों खाया, लास्ट मंथ खाया, लास्ट ईयर खाया, राइट। लेकिन वो मैंने खाया है, उसका असर जब तक रहेगा, असर में मेडिकली असर नहीं बोल रहा हूँ, राइट। मेरे कॉन्वर्सेशन में वो जब तक मेरे दिमाग में वो जिंदा है और मुझे किसी ने बताया है, मुझे किसी को बताना है, तब मैं प्रेजेंट परफेक्ट यूज करूंगा। जैसे कि आप खाना खा लिया, राइट, जैसे कि ब्रेकफास्ट कर लिया आपने और आपको बताना है कि भाई मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो उसका एक असर रहता है। वो असर कब तक है? जब तक आपको दोबारा भूख नहीं लगती है, लंच का टाइम नहीं होता है, तब तक। सुनिएगा ध्यान से। जैसे कि आपने मान लो 7 बजे ब्रेकफास्ट किया सुबह, आपको लगेगा यार ये सुबह सुबह खाने की बात आ गई, पहले पानी पूरी की बात आई, अभी ब्रेकफास्ट की बात आई। तो अभी पानी पूरी पे फोकस नहीं करना है, प्रेजेंट परफेक्ट पे करना है। तो आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो आप सोचिए, आप खुद अपने आप से सवाल करिए, आप कब तक किसी को ऐसा बोलते रहेंगे कि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है? आपने कभी ऐसा बोला कि सुबह 3 बजे ब्रेकफास्ट किया है और शाम को 5 बजे आपका दोस्त अगर आपको बोलेगा कि चल यार नाश्ता करने के लिए जाते हैं, तो आपने कभी ऐसा बोला नहीं यार मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है? नहीं बोलेंगे। वो तब तक बोलेंगे जब तक आपको दोबारा भूख नहीं लगती है, राइट। तो जब तक वो उसका आपका मेंटल आपके ऊपर असर है, तब तक वो प्रेजेंट परफेक्ट है। मेंटल असर भी खत्म हो गया, उसके बाद वो सिंपल पास्ट हो गया, राइट। मतलब आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और जैसे ही प्रेजेंट उसका असर भी खत्म हो जाएगा, वो आई टुक में चला जाएगा कि मैंने मेरा ब्रेकफास्ट लिया था या लिया। दूसरा मैं बताता हूं, आप गेस्ट आपके घर पर आए, राइट। अब आने की एक्टिविटी कितने सेकंड की होती है? 1 सेकंड की, 2 सेकंड की। घर के अंदर आ गए तो एक वो क्रिया खत्म हो गई। अब घर के अंदर आने की क्रिया कितने सेकंड की होती है? 2 सेकंड की, 3 सेकंड की, राइट। माई फ्रेंड केम टू माई होम, मेरा दोस्त मेरे घर पर आया था। और कोई भी गेस्ट आपके घर पर आया है, तो आया था ऐसा आप कब यूज कर पाओगे? जब वो चला जाएगा तब, सही है। अगर आपके घर पर कोई बैठा है तो ऐसा तो नहीं बोलोगे ना मेरे घर पर कोई आया था। जब तक वो बैठा है तब तक क्या यूज करेंगे आप? आया है। मेरे किसी को फोन आया आपका कि भाई क्या है बाहर आओगे, तो आप क्या बोलोगे? नहीं यार मेरे घर पर कोई आया है। क्यों? क्योंकि वो आने की एक्टिविटी तो 1 सेकंड में पूरी हो गई, लेकिन उसका असर जिंदा है। असर कैसे जिंदा है? कि वो घर पर है। अब वो चले जाएंगे तब आप ये बोल पाओगे कि समवन या फिर माय फ्रेंड केम टू माय होम, मेरा दोस्त मेरे घर पर आया था। लेकिन जब तक वो बैठा है, आपको क्या यूज करना पड़ेगा? माय फ्रेंड हैज कम टू माय होम, मेरा फ्रेंड मेरे घर पर आया है, राइट। ये तो मैंने छोटे छोटे टाइम वाली एक्टिविटी बताई। अब मैं बड़े टाइम वाली एक्टिविटी, जैसे कि आपने जिंदगी में एक बार ताजमहल देखा, तो आप पूरी जिंदगी आपके ऊपर वो असर रहेगा ना। क्यों असर रहेगा? कि आपने देख लिया है, कम से कम आपके दिमाग को ये पता है कि आपने ताजमहल देखा है। तो क्या यूज करोगे आप? आई हैव सीन द ताजमहल, राइट। मैंने ताजमहल देखा है। क्यों? क्योंकि एक देखने की क्रिया तो कब की पूरी हो गई? जब तक आपने देखा, खत्म। लेकिन उसका असर लाइफ टाइम आपके दिमाग में रहता है। तो जब भी आपको ऐसी कोई चीज है, आई हैव सीन, या फिर आप मान लो कि कोई बड़ी सेलिब्रिटी से मिले हो, राइट, क्या बोलोगे? आई हैव मेट मिस्टर बच्चन, मैं एक बार मिस्टर अमिताभ बच्चन से मिला हूं या मिली हूं। क्यों? आपके दिमाग में वो असर है। मिलने की एक्टिविटी तो एक बार खत्म हो गई। सो ऐसी जो भी एक्टिविटी है उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पूर्ण एक्टिविटी खत्म हो गई, लेकिन आपके वर्तमान पे अभी जब बोल रहे हो, तब दिमाग पे आपकी या फिर आपके उस पे उसकी असर है, राइट। आपके उसके पीछे से है निकाल दोगे। मैंने खाना खा लिया है, वो है निकाल दोगे, या फिर गुजराती में मैं जमी लीधु छे, तो छे निकाल दोगे, तो आपको पास्ट का ही सेंटेंस लगेगा पूरा। मैंने खाना खा लिया,
तो क्या हो गया, सिंपल पास्ट, लेकिन उसमें है लगाता हूं, मैंने खाना खा लिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। तो एक्चुअली मेरा टॉपिक ये नहीं था, लेकिन आपको और रिवीजन करवाने के लिए ये लिया है। टॉपिक ये है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट तो हमने कर लिया, अब इसी सारी चीज को मैं अगर पास्ट में उठाकर डाल देता हूँ, पास्ट में कैसे उठाकर डाल सकता हूं मैं इसको, कि घटना भी पास्ट में हुई और उसकी असर वाली जो घटना है वो भी पास्ट में हुई, तभी पास्ट हो जाएगा ना। अभी क्या है प्रेजेंट परफेक्ट में, असर वर्तमान में है, क्रिया कहाँ पे हुई है, पास्ट में, लेकिन अगर वो दोनों चीजें पास्ट में चली जाए, घटना भी और उसकी असर भी, तो क्या हो जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट। अभी क्या हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में, फिर से मैं बता रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा एक पॉइंट प्रेजेंट में है, दूसरा पॉइंट पास्ट में है, राइट। एक एक्टिविटी प्रेजेंट में है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रेजेंट में है, या फिर जो असर है वो प्रेजेंट में है। मैंने खाना खा लिया है, हमने सबने टीवी देख लिया है, हमने सबने बातें सुन ली है, हमने होमवर्क कर लिया है, हमने गाना गा लिया है, राइट। ये सब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों, गाना गाने की, खेलने की, सोचने की, कूदने की एक्टिविटी हो गई है, लेकिन उसका असर वर्तमान पर है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन ये दोनों अगर पास्ट में चला जाए, एक्टिविटी भी और उसकी असर भी, तो पास्ट परफेक्ट। अब आपको कोई कंफ्यूजन हुआ उसमें कि एक्टिविटी भी पास्ट में चली जाए, उसका असर भी पास्ट में चला जाए, तो क्या डिफरेंस होगा? कुछ है आपको, कुछ सवाल आ रहे हैं दिमाग में आपके? नहीं आ रहे ना, कोई बात नहीं, चलो मैं आपको बताता हूँ। यस, अपने E55 आपने अभी हैंड रेज किया? यस यस यस, क्वेश्चन करिए ना आपने, आपको सबको बोल रहा हूँ। यस हाँ सर, अगर हम ऐसा बताना चाहते हैं कि मैंने कोई काम पूरा कर लिया था, तो इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा ना। ओके, वो ठीक है, लेकिन मेरा ये है कि आपको और कोई सवाल आ रहा है कि चलो प्रेजेंट परफेक्ट तो समझ में आ गया कि एक एक्टिविटी पास्ट में हुई है, उसका प्रेजेंट पे असर है, लेकिन ये असर भी पास्ट में चला जाएगा, एक्टिविटी भी पास्ट में चली जाएगी, तो गड़बड़ क्रिएट हो जाएगी, ऐसा किसी को लग रहा है? यस विकास। विकास भाई, यस राजेश सर। कि पास्ट में क्रिया भी हो गई है और उसका असर भी नहीं है। अगर उसका असर नहीं होता तो अभी कैसे याद आता, प्रेजेंट में कैसे याद आता है? उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा तभी हमें याद आता है ना। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट एंड पास्ट एक्सपीरियंस, इट इज मेमोराइज्ड समवेयर एंड वी आर डिक्लेयरिंग इन द प्रेजेंट। ओके, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड अबाउट दैट थिंग। नहीं ठीक है, ठीक है, अच्छा है। नहीं, ये एक्चुअली आपकी बात सही है, लेकिन वो मैं दो टाइप के हैं। एक तो मेरे प्रेजेंट पे उसकी असर है, कोई भी एक्टिविटी बनती है तो सारी घटना की असर तो प्रेजेंट पे रहती है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में कोई मुझे कुछ पूछ रहा है या मैं किसी को बता रहा हूँ, उस पर्टिकुलर घटना पे असर है। जैसे कि मैं खाना खाने की एक्टिविटी कर रहा हूँ, खेलने का कोई मुझे पूछ रहा है, तो मैं उस रेफरेंस में बता रहा हूँ, उस पे उसकी असर है। और बाकी तो जो भी चीज है, जैसे कि सिंपल पास्ट है, वो नरेशन है, मतलब मैं किसी को स्टोरी सुना रहा हूँ, घटना हो गई, उसकी असर भी हो गई, उसके मेरे को प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ किसी को बता रहा हूँ, कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्रिकेट खेला था, मतलब वी प्लेड क्रिकेट, तो उसकी वर्तमान पे वैसे कोई असर नहीं है, हम जो बात कर रहे हैं उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब अगर आप मुझे पूछेंगे कि चलो भाई क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, तो
उस पे मेरा असर है कि नहीं भाई मैं तो अभी खेल कर आया हूँ, आई हैव जस्ट प्लेड क्रिकेट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये है। अब पास्ट परफेक्ट पे आते हैं। मैं ये आपको बता रहा हूं कि अगर मुझे असर भी बतानी है और वो क्रिया भी खत्म हो गई तो पास्ट में ऑलवेज 2 एक्टिविटी होगी, तभी मैं पास्ट परफेक्ट यूज करूंगा। ध्यान से देखिएगा कौन सी, कि वो आपने जो एक एक्टिविटी की होगी और जो असर होगी वो दूसरी घटना होगी ना। तो ऑलवेज पास्ट परफेक्ट हम तभी यूज करेंगे जब पास्ट में 2 घटनाएं घटित हुई या फिर टाइम के 2 पॉइंट हो। घटना चाहे एक ही हो लेकिन 2 टाइम। क्यों? एक जब वो घटना पहली वाली हुई और दूसरी उसका रेफरेंस पॉइंट, ये कब हुआ, 2 हुआ, उसमें से पहला कौन सा हुआ और बाद में कौन सी एक्टिविटी हुई। अगर एक ही घटना पास्ट में हुई है तो हमारे पास सिंपल पास्ट है, हम बता देंगे कि वी प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेला था। वी मेट ईच अदर, हम एक दूसरे से मिले। वी वेंट टू गोवा, हम गोवा गए। लेकिन पास्ट में 2 एक्टिविटी हुई है तो, और हम 2 एक्टिविटी हुई है तो दोनों को सिंपल पास्ट से बता सकते हैं, उसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर उन दोनों का कुछ रिलेशन है और हमको बताना है कि नहीं ये घटना से पहले ये घटना ऑलरेडी हो चुकी थी, तो जो ऑलरेडी हो चुकी थी उस घटना के लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। आपको एग्जांपल से अब सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट। ओके, वो कौन रीड करेगा? चलिए रीड करते हैं। कौन रीड करेगा इसको? जो पहला। ओके, यस दक्षा। Yes, sir. The past perfect, also called the pluperfect, Pluperfect is a verb tense used to talk about action that were completed before some point in the past. ओके, कौन करेगा इसका मीनिंग? कौन बताएगा मुझे? मीनिंग कौन बताएगा? D197 श्वेता बताइए मीनिंग क्या समझे आप इससे? सबको पढ़ना है इसको और समझना है। हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस को प्लूरल परफेक्ट भी कहा जाता है। और ऐसा बोल रहा है कि ये जो भी एक्शन है वो पास्ट में हो चुका है। वेरी गुड, दैट्स इट। ओके, फेयर इनफ। चलो, पास्ट परफेक्ट को प्लू परफेक्ट भी कहा जाता है। वो क्या है? इज अ वर्ब टेंस। वो एक वर्ब टेंस है यूज टू टॉक अबाउट एक्शन। कहाँ यूज होता है? एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्शंस के बारे में बात करने के लिए बताया जाता है। बट वो कौन से एक्शन? दैट वर कंप्लीटेड, वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन कब खत्म हो चुके हैं? बिफोर सम पॉइंट इन द पास्ट। पास्ट में कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर आप बताना चाहते हो कि ये जब घटना घटित हुई ना, उससे पहले एक घटना हो चुकी थी। आपने अभी पता हो ना व्हेन वाला हमने सीखा था, याद है आपको? कि व्हेन में सिंपल टेंस कुछ हुआ था तब कुछ हो रहा था। व्हेन यू केम टू माई होम वी वर वॉचिंग टीवी। जब आप मेरे घर पर आए तब हम टीवी देख रहे थे। तब मैंने रेफरेंस की बात की थी। पता है कि जब आपके घर आने की क्रिया जो है वो रेफरेंस है। उस टाइम हमारी एक्टिविटी एक चल रही थी, जब क्रिकेट देख रहे थे, राइट? व्हेन वी मेट, जब हम मिले तब बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग। तो हम मिले, उसकी एक्टिविटी है और उसके साथ एक घटना शुरू थी। तो रेफरेंस पॉइंट मैंने बताया था ना कि समय के पॉइंट पर कोई घटना शुरू थी। पास्ट कंटिन्यूअस हमने सीखा अभी रिसेंटली। लेकिन अब उसी पॉइंट पर मैं बता रहा हूं कि उसी पॉइंट पर ऐसा हो रहा है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं 7 बजे, 8 बजे, कल सुबह, परसों सुबह, जब आप मेरे घर पर आए थे तब, जब आप खाना खा रहे थे तब। वो रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो उस पॉइंट से पहले कोई घटना ऑलरेडी हो चुकी है, उसको दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट। जैसे कि हमने 7 बजे से पहले खाना खा लिया था, तो 7 बजने की घटना बाद में हुई, खाना खाने की उसकी एक्टिविटी उससे पहले हुई।
दो एक्टिविटी हुई, दूसरी एक्टिविटी 7 बजने की, पहली एक्टिविटी खाना खाने की। दूसरा, जब आप हमारे घर पर आए, या फिर आप हमारे घर पर आए, जब छोड़ दीजिए, आप हमारे घर पर आए, उससे पहले हमने खाना खा लिया था। तो रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? आप हमारे घर पर आए, और वो पहली वाली घटना उससे पहले हो चुकी है। तो जो पहली हुई वो क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। और घर पर आए वो एक्टिविटी दूसरी हुई, वो क्या हो गई? सिंपल प्रेजेंट। ध्यान से, राइट। जब एक्सीडेंट हुआ, राइट, उससे पहले मैं ये बात आपको बता चुका था। एक्सीडेंट बाद में हुआ, दूसरी एक घटना, रेफरेंस पॉइंट, उससे पहले ये बात मैं आपको बता चुका था। तो वो जो बात करने की एक्टिविटी है वो एक्सीडेंट से पहले हुई। तो जो घटना पहले हुई वो पास्ट परफेक्ट, बाद में हुई वो सिंपल पास्ट। और इसको तरीके से देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, बहुत इजी है, मजेदार है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैंने 3 यहाँ पे दिए हैं। येलो वाला एरो जो है वो प्रेजेंट दिखा रहा है कि हम यहाँ पे खड़े रहकर बात कर रहे हैं। प्रेजेंट वाला जो एरो है ना, वहां पर। पास्ट में अब चले जाइए, लेफ्ट में, आपके लेफ्ट में जाइए, मतलब पास्ट में गए 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 गए, रुक जाइए, वहां आया सिंपल पास्ट एक्टिविटी 2 रेफरेंस पॉइंट। मतलब सिंपल पास्ट दिखाएंगे हम अगर दूसरी एक्टिविटी हुई है उसको दिखाने के लिए, और वो रेफरेंस पॉइंट है। और अगर उस घटना से भी पहले कोई घटना घटित चुकी है, लेफ्ट में आइए, लेफ्ट में आइए, लेफ्ट में आइए, तो वो है एक्टिविटी 1, और उसे दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, राइट। चलिए कैसे करेंगे, नेक्स्ट। इजी है। कल अगर आपने सीखा होगा हैव हैज प्लस V3, तो यहाँ हैव भी नहीं है, हैज भी नहीं है, तो वो भी दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ हैड। आई हैड विजिटेड गोवा, मैंने गोवा की विजिट की थी किसी घटना से पहले, राइट, बिफोर 2013। 2013 से पहले मैंने एक बार, 2013 की घटना बाद में हुई, इससे पहले मैंने गोवा देख लिया था, राइट। तो इसी तरीके से हैड का हैड नॉट, अगर इंटरोगेटिव है तो हैड आगे चला जाएगा, WH है तो WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, राइट। ओके नेक्स्ट एग्जांपल से सीखते हैं। इसको मैटर नहीं, ये कोई मैटर नहीं करता है। ओके आगे आगे आगे। अब इसमें 2, अरे आफ्टर वाला, सिर्फ आफ्टर वाला नहीं, आफ्टर प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस। ओके थैंक यू। अब एक एक्टिविटी है। आफ्टर का मीनिंग कौन बताएगा मुझे? आफ्टर कब यूज करते हैं? आफ्टर का मीनिंग मतलब, यस उर्वशी? पछी, आफ्टर मीनिंग बाद में, मतलब किसी को कुछ करना है, आई विल कॉल यू आफ्टर 2 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स, मतलब 2 मिनट बाद आपको कॉल करूंगा, ऐसा बोलते हैं ना हम, राइट। तो मैंने आपके सामने 2 पार्ट रखे हैं, एक ऊपर वाला पार्ट है और एक नीचे वाला पार्ट है, राइट। इन दोनों के बीच में मुझे पहले सबके हैंड लोअर कर दीजिए, राइट। पहला सेंटेंस, दोनों सेंटेंस में डिफरेंसेस क्या है ना, वो आपको मुझे बताना। आपको जो भी डिफरेंसेस आपके सामने 2 सेंटेंस को देखकर जो भी डिफरेंसेस आपको लगता है कि सर पहले 2, ये जो पहले ग्रीन कलर है ना, पहले 2 पैराग्राफ में ग्रीन रखा है, नीचे के 2 पैराग्राफ में मैंने ऑरेंज रखा है, तो पहले और दूसरे में क्या डिफरेंसेस है ये मुझे बताना है, आपको मुझे बताना है। आपको जो लगते हो, ग्रामेटिकली नहीं, आपको जो लगते हो, आपको सर ये इसमें ये इसका कलर हरा है, इसका कलर ऑरेंज है, ऐसे डिफरेंस भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे डिफरेंसेस। यस आरसी? यस। एक में आफ्टर वाला सेंटेंस पहले है, मतलब एक में परफेक्ट पास्ट वाला पहले है और एक में परफेक्ट पास्ट वाला बाद में है। ओके, आरसी ने बताया कि एक में आफ्टर आगे लगा है, एक में पीछे लगा है, एक में पास्ट परफेक्ट वाला आगे है, एक में पास्ट परफेक्ट वाला पीछे है।
अब जो भी डिफरेंसेस जो भी नोट करते हो ना कि मैंने इसमें ये नोट किया, ये मुझे बताना है वन बाय वन। कम ऑन जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है। यस ध्रुविन। आफ्टर तो आगे ही है, पीछे नहीं है। सिर्फ एक में पास्ट परफेक्ट आगे है और एक में पास्ट परफेक्ट पीछे है। गुड, ओके पारुल। यस, ईच 107 ध्यान से देखिए इसको, डिफरेंसेस। कम ऑन। પેલામાં જે કોમા લખ્યું છે ને બ્લુ કલર બ્લેક કલર જેવા અક્ષર છે એ નીચેનામાં નથી લખ્યું અને એનો મીનિંગ શું છે એ મને નથી ખબર. वेरी गुड। पारुल का कहना है कि पहले में कॉमा यूज किया है, दूसरे में कॉमा है ही नहीं। वेरी गुड। दूसरा डिफरेंस, वेरी गुड। यस मयूरी। हेलो सर। यस, पहले वाला सेंटेंस है, इसमें आफ्टर पहले लगा कर ऐसा बोला है कि मैंने पहले डिनर किया बाद में आप आए, और दूसरे सेंटेंस में है कि आप आए उसके बाद मैंने डिनर किया। ओके, मैं ये बता दूं दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं, एक ही मीनिंग है। डोंट वरी, अभी तो सिखाया ही नहीं तो कहां से आएगा। यस 1C130 जानवी। श्रीजा। यस सर, सेंटेंस पैटर्न में आफ्टर से शुरुआत हुई है, नीचे के सेंटेंस पैटर्न में सब्जेक्ट टू से शुरुआत हुई है। ओके, वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। श्रीजा का कहना है कि पहला सेंटेंस है वो आफ्टर से शुरू हुआ है, सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें सब्जेक्ट टू मतलब दे से शुरू हुआ है। गुड। यस दिलाशा। पहले सेंटेंस में आफ्टर आगे है और दूसरे सेंटेंस में दे कम। ओके, थोड़ा टाइम कम है इसलिए हम दूसरी एक्टिविटी पे जा रहे हैं। अभी लोअर कर दीजिए सबके हैंड। राइट, पास्ट परफेक्ट जो है उसमें आफ्टर बिफोर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। अब मैंने जैसे बताया कि पास्ट में दो एक्टिविटी होगी तब हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, तो आफ्टर बिफोर यूज करना पड़ेगा ना, कौन सी एक्टिविटी पहले कौन सी एक्टिविटी बाद में। तो ये बहुत ही लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ आफ्टर यूज करना है, कहाँ बिफोर यूज करना है। आफ्टर वाले सेंटेंस में कौन सा टेंस आएगा, बिफोर वाले में कौन सा टेंस आएगा। तो पहली चीज या तो आप आफ्टर यूज करेंगे या तो आप बिफोर यूज करेंगे, दोनों नहीं यूज करेंगे एक साथ। राइट, यहाँ पे क्या एग्जांपल लिखा है, आफ्टर आई हैड टेकन माय डिनर दे केम। मैंने मेरा डिनर ले लिया उसके बाद वे आए। दूसरा में भी यही है, दे केम आफ्टर आई हैड टेकन माय डिनर, मेरे डिनर करने के बाद वे आए। मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बोलने में डिफरेंस है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं। आफ्टर आई हैड टेकन माय डिनर दे केम, मैंने मेरा डिनर कर लिया उसके बाद वे आए। राइट, दूसरा है दे केम आफ्टर आई हैड टेकन माय डिनर, मेरे डिनर करने के बाद वे आए। वे आए मेरे डिनर करने के बाद। कोई मीनिंग में डिफरेंस नहीं है। मैंने आपको स्पॉट डिफरेंस इसलिए करवाया कि दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है, दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग एक है, सिर्फ आफ्टर एक में आगे आया है एक में बीच में आया है। लेकिन आफ्टर आगे आए या बीच में आए, देखिए आफ्टर के साथ ही पास्ट परफेक्ट आया, देखा आपने, आफ्टर आई हैड ऊपर वाले में नीचे वाले में। अगर आफ्टर आगे आएगा तो आफ्टर का ए कैपिटल हो जाएगा और सेंटेंस के लास्ट में कॉमा लग जाएगा। दिख रहा है आप पहले सेंटेंस में, और ताकि लास्ट वाले सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस में आफ्टर बीच में आया है इसलिए दे में टी कैपिटल हो जाएगा, यहाँ पे कोई कॉमा नहीं लगेगा सेकंड सेंटेंस में, क्योंकि आफ्टर आया है ना, वो कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। समझ में आया? आफ्टर आगे लगे या पीछे लगे, आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट ही आएगा और उसके अलावा जो दूसरा सेंटेंस है उसके साथ सिंपल पास्ट ही आएगा। समझ में आ गया आपको? दूसरा, आज दूसरे पे जाते हैं, बिफोर पे। ये मैं आपको एक्टिविटी आज नहीं करवा पाऊंगा, ये थोड़ा घर से देख लेना। सेम एक्टिविटी है लेकिन आफ्टर के साथ आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट और फर्स्ट एक्टिविटी ठीक उसी से उल्टा। अगर मैं बिफोर यूज कर रहा हूं तो बिफोर के साथ दूसरी एक्टिविटी और सिंपल पास्ट।
पास्ट परफेक्ट नहीं। जैसे कि आई हैड टेकन माई डिनर बिफोर दे केम, उनके आने से पहले मैंने डिनर कर लिया था। आगे वाले में क्या था, मैंने डिनर कर लिया उसके बाद वे आए, आफ्टर में। इसका मीनिंग क्या है, वे आए उससे पहले मैंने डिनर कर लिया। नीचे वाला सेंटेंस देखिए, बिफोर दे केम, वो आए उससे पहले, आई हैड टेकन माई डिनर, मैंने डिनर कर लिया था। दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, ऊपर वाले में और नीचे वाले में। सिर्फ अगर आप बिफोर बीच में लगाते हैं तो कॉमा नहीं आएगा, उसमें आगे लगाते हैं तो बीच में कॉमा आएगा। देखिए बिफोर वाले में ही सिंपल पास्ट है, नीचे भी और ऊपर भी दिख रहा है आपको, बिफोर दे केम, नीचे भी बिफोर दे केम। ओके, नेक्स्ट। सिंपल आपको तरीके से आपको समझ आया इसलिए कि आफ्टर वाले सेंटेंस में फर्स्ट एक्टिविटी वो पास्ट परफेक्ट, दूसरे सेंटेंस में सिंपल पास्ट सेकंड एक्टिविटी, राइट। या फिर नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं। दूसरा, आपको लगेगा कि आफ्टर बिफोर ही पास्ट परफेक्ट है, नहीं, पास्ट परफेक्ट के लिए आफ्टर बिफोर होना जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर में आप आफ्टर बिफोर यूज करेंगे। आपके दिमाग में अगर कुछ चीजें क्लियर है, जैसे कि हम दोनों, मैं और आप बात कर रहे हैं, मेरे दिमाग में पक्का है कि कुछ घटना से पहले में कुछ घटना हुई थी, तो मैं डायरेक्टली भी विदाउट आफ्टर बिफोर भी हैड यूज कर सकता हूँ, राइट। जैसे कि आई हैड मेट यू, यार हम कई बार हिंदी में इंग्लिश में मिक्स बोलते हैं, मतलब कुछ घटना हुई उससे पहले मैं तुमको मिल चुका था या मिल चुकी थी, तो उसमें भी यूज कर सकता है। बिकॉज के साथ भी यूज कर सकता है, जैसे कि आपने मेहनत नहीं की इसलिए आप फेल हो गए, तो फेल होने की घटना कब हुई, दूसरी, और मेहनत नहीं करने की घटना उससे पहले, तो क्या बोलेंगे हम, यू हैड फेल्ड बिकॉज यू डिड नॉट वर्क हार्ड, बिकॉज आपने नहीं की। तो दूसरे सेंटेंस में डिड नॉट हार्ड सिंपल पास्ट, यू हैड फेल्ड, सॉरी आपके फेल होने की घटना, सॉरी यू डिड नॉट पास, आप पास नहीं हुए, बिकॉज यू हैड नॉट वर्कड हार्ड, आपने ठीक से मेहनत नहीं की थी। तो मेहनत नहीं करने की एक्टिविटी पहले हुई, फेल होने की या पास नहीं होने की एक्टिविटी बाद में हुई। यू डिड नॉट पास, आप पास नहीं हुए, बिकॉज यू हैड नॉट वर्कड हार्ड, आपने मेहनत नहीं की थी, सख्त मेहनत नहीं की थी। तो ऐसा नहीं है सिर्फ आफ्टर बिफोर है तो ही पास्ट परफेक्ट है, आफ्टर बिफोर में नहीं जाना है। आफ्टर बिफोर तो मैंने एज ए टूल आपको सिखाया, आपको मीनिंग पे ही जाना है। आपके दिमाग में दो घटनाएं हैं, उसमें पहली घटना दिखानी है तो पास्ट परफेक्ट में दिखाएंगे, दूसरी घटना या उसका रिजल्ट दिखाना है तो सिंपल पास्ट में दिखाएंगे। इतना सिंपल है, और कुछ नहीं करना है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप और क्लियर हो जाएंगे। आई हैड रिटन आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स बिफोर ही केम। देखो हैड है वो अलग में है, बिफोर है वो उसके बाद सिंपल पास्ट। ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि वो आया उससे पहले मैंने कुछ आर्टिकल्स लिख डाले थे टॉपिक्स के ऊपर, दो घटनाएं हुई, ही केम आने की घटना बाद में हुई, आर्टिकल लिखने की घटना पहले हुई, तो जो पहले हुई उसको हेड से दिखाया, बाद में हुई उसको सिंपल पास्ट से दिखाया। ध्यान से देखिए, और चारों के चारों सेंटेंस जो मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखे हैं, उन चारों के मीनिंग एक है, एक ही घटना हुई है, लेकिन उसको चार अलग अलग तरीके से मैंने दिखाया है। आप आज घर पर इसको ठीक से ऑब्जर्व करिएगा तो आपको आ जाए। मैं चारों के चारों का मीनिंग बता देता हूँ। फर्स्ट का बता दिया, दूसरा बिफोर ही केम आई हैड रिटन आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स, वो आया उससे पहले मैंने अलग अलग घटनाओं पे आर्टिकल लिख दिए थे, इसमें मैंने सिर्फ बिफोर आगे लिया है, बीच में कॉमा लगाया है। थर्ड वन, he came after I had written articles on various topics, right? मैंने कुछ घटनाओं पे आर्टिकल्स लिख दिए, उसके बाद वो आया। उसमें पहले ही है, पहले दो सेंटेंस में, नीचे के दो सेंटेंस में बाद में है। आफ्टर आई हैड रिटन आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स ही केम, मैंने जब बहुत सारे टॉपिक्स पे आर्टिकल लिख दिए उसके बाद वो आया, राइट? ये है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, टाइम हो गया है। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको दिए हैं। नेक्स्ट, हाँ राइट, आप देखो घटना मतलब टाइम को भी एज ए घटना के तौर पर ले सकते हैं।
कि 7 बजे से पहले मैंने खाना खा लिया था, तो आई हैड टेकन माई डिनर बिफोर 7 PM। तो 7 PM भी एक घटना है। तो आपको कई बार क्या होता है कि यार इसमें 2 एक्टिविटी तो नहीं है, फिर भी हैड क्यों यूज किया? तो जो कोई टाइम का पॉइंट है, सुबह, शाम, 7 बजे, 8 बजे, वो भी एक घटना है। तो उससे पहले कुछ घटना हुई है, उसको दिखाने के लिए भी आप हैड यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ दिमाग में इतना ही याद रखना है, कुछ हुआ था, उससे पहले कुछ हुआ था, बस ये पास्ट परफेक्ट। कुछ हुआ था, उससे पहले भी कुछ हुआ था। 7 बजे तो वो दूसरी घटना हुई, उससे पहले क्या हुआ था? आपने खाना खा लिया था, तो पास्ट परफेक्ट। पूरे पास्ट परफेक्ट में आपको यही चीजें मिलेगी, कुछ हुआ था, उससे पहले कुछ हुआ था। राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये कुछ होमवर्क में आपको सेंटेंस है, आपको ध्यान से करना है होमवर्क। राइट, बोल बोल कर करना है, मिरर के सामने प्रैक्टिस करके करना है। नेक्स्ट, ओके। सो अभी आपको आज थोड़ा आपका टाइम ज्यादा लिया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट मुझे और क्लियर करवाना था। अब किसी को सवाल है तो वो सिंपल स्ट्रेट पूछ सकते हैं, और अगर मैं कुछ बाकी है तो जिग्नेश बता सकते हैं कि अगर कोई आज का कोई घटनाक्रम है तो। यस दुधा, यस पारुल, क्वेश्चन म्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ, કોમા એટલે અલ્પવિરામ જ થાય ને? યસ, અલ્પવિરામ. હા, અને આપણે જે એક્ઝામ્પલ નો ઓલો હતું ને, એમાં ત્રીજું વાક્ય છે she gone, તો એવું કઈક હતું, એટલે gone નો મીનિંગ શું થાય? V3 आपको जयेश सर ने पहले बताया था, पास्ट परफेक्ट, सॉरी वो V1, V2, V3, और कल भी बताया होगा। एक होता है गो मतलब जाना, उसका पास्ट फॉर्म होता है वेंट मतलब गए, लेकिन थर्ड फॉर्म होता है, इसलिए मैंने V3 बार बार लिखा है, वो होता है गॉन। तो यहाँ पे हम पास्ट कोई भी परफेक्ट टेंस में हम ऑलवेज V3 यूज करेंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ओके, एंड पीपीटी નો ફૂલ ફોર્મ શું થાય? सॉरी, पीपीटी નો ફૂલ ફોર્મ શું થાય? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसको पीपीटी बोलते हैं। पावर, थैंक यू, गुड क्वेश्चन। यस, रसना पटेल। यस सर, yesterday Jayesh sir gave some sentence for practice. Okay. So I had one question. Yes. About. So can I see yesterday PPT? Yes, अगर शेयर कर सकते हैं तो। कल का पीपीटी। Rakesh, we have less time, so we can't share. Okay, कोई बात नहीं। यस सतीश, मितेश आप मुझे कॉल कर लेना प्लीज, स्क्रीनशॉट मुझे भेजकर आप कॉल कर लेना कि इसमें सवाल है सर। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सर। यस सतीश, use past perfect tense without reference point? नो, अगर रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है तो सिंपल पास्ट है ना मेरे पास, मैं वो यूज करूंगा ना। देखिए, हेलो एक मिनट, ये जो जिसने सवाल पूछा है मैं आपको बता दूं, रेफरेंस पॉइंट सेंटेंस में होना जरूरी नहीं है, आपके दिमाग में होना जरूरी है। राइट, कभी आपको लगेगा कि मैं ऐसा बोलूंगा कि आई हैड डन माई होमवर्क, मैंने मेरा होमवर्क कर लिया था, अब लगेगा इसमें हैड की जरूरत नहीं, इसमें कहाँ 2 घटनाएं हुई। लेकिन जब मैं किसी के साथ बात कर रहा हूं तब हमारे कॉन्वर्जेशन में वो रेफरेंस पॉइंट है, हम दोनों को पता है कि हम किस घटना की बात कर रहे हैं। राइट, वो दिमाग में होना जरूरी है, सेंटेंस में दिखे या ना दिखे। ओके ओके, थैंक यू। यस सतीश। हेलो। यस, तो सेंटेंसेस में आफ्टर और बिफोर का यूज करना मस्ट भी है कि फिर इसके बाद? नहीं, आपको अगर 2 घटनाएं हुई है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे ना, आप किसके साथ बात कर रहे हो। आपको उसको, अगर आपको लगता है कि ऐसी घटना हुई जिसमें पहले और बाद में ये दोनों शब्द यूज होते हैं तो आफ्टर बिफोर यूज करना है। एग्जांपल दीजिए ना सर, आफ्टर और बिफोर के बिना भी हम यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई एग्जांपल सर?
आफ्टर रिक्वायरमेंट है तो करना है, वरना नहीं करना है। उसमें मैं एग्जांपल आपको कैसे, जैसे मैंने बिकॉज वाला एग्जांपल दिया ना आपको अभी कि भाई आपने मेहनत नहीं की थी इसलिए हार गए, अभी उसमें कहाँ आफ्टर बिफोर आया। ओके मेहनत नहीं की वो पहली घटना थी, आप हार गए वो बाद की घटना थी। ओके राइट। ओके और कोई? चलो तो सॉरी सभी साथियों को, आपके 8 मिनट ज्यादा लिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। अब ज्यादा नॉलेज हो गया है तो ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वरना वो नॉलेज आपके लिए बोझ बन जाएगा। थैंक यू। Bye bye bye. Thank you, say Bye bye. bye 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 everybody. Bye bye Karunaben. Bye bye Varsha. Bye Karunaben. Bye 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 bye.